Assalamu alaikum class 9. I hope you're all fine. Let's discuss some terms associated with physical states of matter. Compressibility. Gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. Gases के दरमियान में जो gases के molecules हैं empty spaces बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से gases को compress किया जा सकता है and they are highly compressible. When gases are compressed, जब gases को compress करते हैं तो molecules come closer to one another. तो जो molecules होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state. और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं when they come closer to one another, they occupy less volume. वो कम volume occupy करते हैं as compared to volume in uncompressed state. Mobility. Gas molecules are always in state of continuous motion. Gas molecules जो हैं हर वक्त continuous motion की state में होते हैं हर टाइम वो move हो रहे होते हैं एक place से दूसरी place में. They can move from one place to another. वो एक place से दूसरी place से move कर सकते हैं because gas molecule possess very high kinetic energy. क्योंकि gas molecules में kinetic energy बहुत ज़्यादा होती है. They move through empty spaces that are available for molecules to move freely. ये जो molecules हैं empty spaces से आराम से pass हो जाते हैं. This mobility or random motion results in mixing up of gas molecules to produce a homogeneous mixture. ये जो mobility है random motion है ये क्या होता है ये result करता है mixing up of gas molecules. Gas molecules mix up हो जाते हैं और एक homogeneous mixture produce करते हैं. Density of gases. Gases have low density than liquids and solids. Gases की जो density है वो liquids और solids से कम है. It is due to light mass and more volume occupied by gas molecule. ये क्यों है इनकी density low क्यों है क्योंकि इनका mass light होता है और volume ज़्यादा occupy करते हैं. Gas density is expressed in grams per decimeter cube. Gas density को हम grams per decimeter cube में express करते हैं. Whereas liquid and solid densities are expressed in gram per centimeter cube. Liquid और solid densities जो है gram per centimeter cube में express होती हैं जबकि gas density grams per decimeter cube में express होती है. Liquids and solids are 1000 times denser than gases. Liquids और solids जो हैं gases से 1000 times ज़्यादा denser होते हैं. Density of gas increases by cooling because their volume decreases. जो gases की density है वो increase होती है cooling से क्योंकि उनका volume कम होता है तो volume इनका decrease करता है. For example, at normal atmospheric pressure, एक normal atmospheric pressure पर जो density है oxygen gas की 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है 20 डिग्री सेल्सियस पर और 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पर. So let's discuss some laws related to gases. Boyle's law. In 1662, Robert Boyle studied the relationship between volume and pressure of gas at a constant temperature. 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी किया. He observed that volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. उसने ऑब्जर्व किया जो एक mass का जो एक mass होती है गैस की जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इसके प्रेशर से और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है एक मास का वो डिक्रीज करेगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा. द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा. मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर और V is inversely proportional to 1 by P. V is equal to K by P. K क्या है कांस्टेंट है. Vp is equal to K. K कांस्टेंट है. K एक proportionality कांस्टेंट है. Where K is proportionality constant, the value of K is same for the same amount of given gas. जो K की वैल्यू है वो सेम होगी उस गिवन गैस की सेम अमाउंट के लिए. So Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant at constant temperature. जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर.
तो अगर P1 V1 इज इक्वल टू K, देन P2 V2 इज इक्वल टू K. P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, P2 फाइनल प्रेशर और V2 फाइनल वॉल्यूम है. जब बोथ इक्वेशंस का सेम कांस्टेंट है तो उन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, as both equations have same constant, therefore their variables are also equal to each other. ये variables भी equal हैं एक दूसरे के. So P1 V1 is equal to P2 V2. ये इक्वेशन जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. Relationship between volume and pressure can be verified experimentally by following series of experiments. जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से. लेट अस टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन इट्स वॉल्यूम. क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर लेते हैं, एक गैस का सिलेंडर, ठीक है, और जिसकी पिस्टन जो मूवेबल होगी और हमने उसके अंदर जो प्रेशर का इफेक्ट देखना है, जिसके इंक्रीज या डिक्रीज का वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आ रहा है. When the pressure of 2 atmosphere is applied, जब 2 एटमोसफेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या रीड करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब. जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं 4 atm पर तो गैस रिड्यूस करता है वॉल्यूम उसका 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है. इस तरह से जब प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा. When the pressure of 2 atmosphere is applied, the volume of gas reads as 1 decimeter cube. When pressure is increased equivalent to 4 atm, the volume of gas reduces to 0.5 decimeter cube. Again, when pressure is increased 3 times, that is 6 atm, the volume reduces to 0.33 decimeter cube. And similarly, when pressure is increased up to 8 atm on piston, the volume of gas decreases to 0.25 decimeter cube. जब हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया इन प्रोडक्ट वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट को, तो वी फाउंड दैट ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट, दैट इज 2 atm डेसीमीटर क्यूब था. इट प्रोवाइड्स द बॉयल्स लॉ. इसने प्रूव कर दिया बॉयल्स लॉ को. एग्जांपल देखते हैं. अ गैस विद अ वॉल्यूम V1 है 350 सेंटीमीटर क्यूब, हैज अ प्रेशर P1 है 650 मिलीमीटर ऑफ Ag. इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड, P2 दे दिए, and we have to calculate its new volume V2. So by using equation P1 V1 is equal to P2 V2, हम V2 फाइंड कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. 785 सेंटीमीटर क्यूब V1 गिवन है, was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter of Ag. P1 भी गिवन है. If volume is reduced to 350 सेंटीमीटर क्यूब, अगर V2 350 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका प्रेशर P2 क्या होगा, हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. एक लॉर्ड कैल्विन, एक साइंटिस्ट या फिजिशियन था, लॉर्ड कैल्विन, फिजिसिस्ट सॉरी, जिसने इंट्रोड्यूस किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और कैल्विन स्केल. उसने इंट्रोड्यूस किया एक स्केल जिसका नाम था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और कैल्विन स्केल. दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन और -273.5 डिग्री सेल्सियस. ये स्केल स्टार्ट होता था 0 केल्विन से या -273 डिग्री सेल्सियस से. इसको नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो को, which is given the name of absolute zero. It is the temperature at which an ideal gas would have zero volume. एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का जीरो वॉल्यूम होगा. As both scales have equal degree range, दोनों स्केल्स के डिग्री रेंज इक्वल है, तो जीरो के इक्वल है -273 डिग्री सेल्सियस के, तो 273 के जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. सो कन्वर्जन जो है केल्विन की सेल्सियस स्केल में और वाइस वर्सा इस फॉर्मूला के थ्रू हो सकती है. केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273. केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर जो होगा सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर है सेल्सियस में उसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा एंड वाइस वर्सा.